So hello everyone, welcome to EduTap, and guys, welcome to your other important lecture of for your examination of ICAR AO, in which I will be discussing the other set of most important MCQs that is related to your subject of current affairs for the month of September 2021. Now guys, before proceeding with the session, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe to the channel so that you can get all the latest updates about the courses that we are providing. For that, you can also press the bell icon for the so that you can get all the updates. Then guys, to get the access of the PDF, kindly subscribe to the Telegram channel, the link for which is given in the description below. Now guys, a very important announcement for all of you. So we are running a flat, that is a super sale we are offering on all our courses, in which what you can do, you can avail a flat 40% off on our courses. Hurry up for the offer, because the offer will be expiring on 26th of September 2021. And how you could avail the course, how you could avail this discount, by using the code SUPER. Okay, now guys, before wasting any time, let's start with the first question of the day. The first question is about the Nutri Garden initiative, which is being basically inaugurated by the Union Minister for Women and Child Development under the पोषण माह campaign of 2021. तो आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट दिस न्यूट्री गार्डन इनिशिएटिव. वेदर इट इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग, क्या ये मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग है न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स के लिए in urban areas under this gardening, whether it will be promoted on rooftop gardening, terrace gardening या container gardening के टाइप के तरह आप इसको promote कर सकते हो. In rural areas, the gardens can be promoted in the backyard of the houses. So you have to tell me कौन सी statement इसके बारे में correct है. ठीक है जी. So guys, answer here is क्या है जी आंसर? तो आंसर है all of the above statements are correct. If I talk about this campaign, so yes, it is being launched under the Poshan Maah 2021 by the Minister of Women and Child Development. So all the statements are correct here, because that we have discussed in the question itself. The method of planting and harvesting है बिल्कुल ठीक है जी. Urban areas में आप उसको कैसे प्रोड्यूस, अर्बन एरियाज में कैसे यूज कर सकते हो, तो वहाँ पे आप रूफटॉप गार्डनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, टेरेस गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग या फिर कंटेनर गार्डनिंग, इस तरह आप इसको प्रमोट कर सकते हो. रूरल एरियाज में इट कैन बी प्रमोटेड इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउसेस. नाउ गाइस, द सेकंड क्वेश्चन इज अगेन अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. आयुष आपके द्वार कैंपेन जो है स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन मोर देन 45 लोकेशंस इन इंडिया. आपने मुझे बताना है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. एम इज दैट अंडर हिट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स, क्या 1 करोड़ सैपलिंग्स, मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स दी जाएंगी इन 1 ईयर. देन द सेकेंड इज 21 states have participated in the launch of the activity, in the launch of this initiative. तो कौन से मेडिसिनल प्लांट्स लाइक तेज पत्ता, अशोका, इस तरह के जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो दिए जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. तो यू टेल मी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है. सो क्या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या इनमें से कोई और स्टेटमेंट है जो आपको लग रहा है इनकरेक्ट है. सो आंसर हेयर इज गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ 2 and 3 आर करेक्ट. वाई नंबर 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज 1 करोड़ नहीं है, टारगेट कितना है, 75 लाख सैपलिंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी. ठीक है जी, अंडर दिस इनिशिएटिव. नाउ टोटल 21 स्टेट्स हैव पार्टिसिपेटेड, और इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है कि मोर देन 2 लाख सैपलिंग्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, बट टारगेट है कि 75 लाख हाउस तक हमने मेडिसिनल प्लांट जो सैपलिंग्स है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब इसके अंदर कौन से मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं, आई हैव गिवन यू अ डिटेल ऑफ देम. तो इंपॉर्टेंट याद रखना, तेज पत्ता, गिलोय, अश्वगंधा, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स जिसकी बात की गई है. The third question is again a very important initiative that was in news in the month of September, that is by the name of India Plastic Pact. तो एक इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है. किसने किया है जी? इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया अलॉन्ग विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. ठीक है. पर्पस ऑफ दिस प्लास्टिक पैक्ट इज बेसिकली to promote a circular system for plastic. Now see, in the question all the important information about the pact is given. Here again what they are asking is the incorrect statement about the pact. So ये याद रखना है आपको कि क्या पूछा जा रहा है, whether they are asking correct statement or incorrect statement. So these keywords you should always see. So incorrect statement first is the pact will bring together prominent enterprises on a national level. ठीक है जी. द पैक्ट वर्क्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर प्लास्टिक विल बी ट्रीटेड एज नॉट रिस्पेक्टेड एंड
does not contaminate the environment also, and it will not be respected also. So commitments made that are made under this project are basically aiming to keep plastic packaging in the economy and out of the natural environment. Now you tell me which statement is correct or incorrect. So guys, here option number B is incorrect. Let's see why it is incorrect. So if I talk about this platform or this initiative, so we have discussed earlier in the question itself कि वर्ल्ड फंड फॉर नेचर अलॉन्ग विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ये प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है. ठीक है जी. पर्पस बेसिकली क्या है कि जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनको एक नेशनल लेवल पे लेकर आया जाए ताकि एक प्लेज डिसाइड हो सके, ताकि एक प्लास्टिक सिस्टम को आप कैसे प्लास्टिक्स को कंट्रोल किया जा सके. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अंडर दिस प्रैक्टिस, इट सेज दैट the plastic should be respected. So this is the wrong statement because it was written not respected. It says the plastic should be respected and it should not contaminate the environment. For that, what it has made is that it aims to keep plastic packaging in the economy itself and out of the natural environment. तो मतलब क्या है कि आप चाहते हो जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको रीयूजेबल फॉर्म में या रिसाइकल करके कैसे यूज किया जा सके ताकि आप उसको थ्रो मत करो. So this is the main purpose of this initiative. Now when I talk about the platform, the targets of this initiative, the targets क्या हैं? That is by 2030 it says that there should be a list of unnecessary or problematic plastic packaging ताकि उनके खिलाफ measures लिए जाएं, ताकि उनको रीडिजाइन और इनोवेटिव वे में उनको रीडिजाइन किया जा सके so that it could be made recyclable. Then 100% of plastic packaging should be reusable or recyclable. Then the 50%, 100% तो reusable और recyclable होनी चाहिए, 50% should be recycled. So these are important words. Recyclable means that the plastic that we are using, it can be recycled, but out of that it says 50% जो plastic package है उसको आपको recycle करना है. ठीक है जी. और 25% जो recycle content है it should be, that is 25% average recycle content should be across all the plastic packaging sector. So these are the important targets of this initiative. Now we have discussed who has developed this initiative, but it will be supported by the UK Research Innovation and it will be also endorsed by British High Commission in India. Then guys, the next question is about Eastern Economic Forum. So it is a very important meeting that has taken place. So you have to tell me, during this plenary session of Eastern Economic Forum, India has tied up with which of the following countries which will be helping to bring stability in the global energy market? USA, France, Russia, Japan. If you just simply remember कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम किस कंट्री से रिलेट करती है, आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हो. So here guys the answer is Russia. Now when I talk about this Eastern Economic Forum, तो ये 2015 में it was established. ये एक इंटरनेशनल मीट है जो कि हर साल रशिया में ही होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. इट टेक्स प्लेस एट Vladivostok in Russia. Okay, the purpose here is to encourage the foreign investment in Russia's resource country. So very important is investment, foreign investment will be promoted in Russia. Now later on the later stages, what it has is, it has now emerged as an international platform for discussing the strategy regarding cultural ties between Russia and other Asia specific countries. ठीक है. So world economy, रीजनल इंटीग्रेशन या फिर इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में डिस्कशंस आपकी होती हैं. देन गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इकोनॉमिक इमरजेंसी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक इमरजेंसी? मालदीव्स, लेबनान, पाकिस्तान या श्रीलंका? सो हियर गाइस द आंसर इज श्रीलंका, बिकॉज ये चीज मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अ क्वेश्चन रिगार्डिंग श्रीलंका कि एक्सिम बैंक ने क्रेडिट दिया था श्रीलंकन गवर्नमेंट को. ठीक है. Now they have declared some results कि why economic emergency has taken place. So now see, one thing you should remember कि इसी से relate करो political question about financial emergency. ठीक है. तो you have to tell me in the comment box that financial emergency in India किस आर्टिकल के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है इंडिया में. दैट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो दिस इज अ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स. देखते हैं किस किसको पॉलिटी अच्छी तरह रिवाइज हो चुकी है किस किस बच्चे की. ठीक है जी.
तो रीजन उन्होंने क्या बोला है कि बिकॉज इट इज अ हैविली इंपोर्ट डिपेंडिंग कंट्री, सो देयर वाज अ डिप्लीशन, क्योंकि स्टीप फॉल देखी जा रही थी वैल्यू ऑफ करेंसी में और फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम हो रहे थे, सो विच रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ फूड प्राइसेस। बेस्ड ऑन दैट श्रीलंका हैज नाउ डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक एमरजेंसी। तो गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन है जी अबाउट अ न्यू forum that is launched by Niti Aayog and World Resource Institute by the name of Forum for Decarbonizing Transport in India. So this initiative is basically a part of this NDCTIA project, that is the Nationally Determined Contributions Transport Initiative for Asia project. Now guys, you have to tell me that which statements are correct about this project, whether it is a joint program of the 7 organizations of Asia, whether it is a part of the International Climate Initiative, ठीक है जी। एम इसका बेसिकली क्या है, टू ब्रिंग डाउन द पीक लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द एशियन कंट्रीज। तो क्या सिर्फ एशियन कंट्रीज की बात कर रहा है या वर्ल्ड लेवल की बात भी करता है? whether it is being implemented by 7 organizations of Asia or any other more number of organizations, or whether it is a part of International Climate Initiative, so that you have to tell me in the comment box. So here guys, all the statements are correct. Okay, when I talk about the forum, that is Forum for Decarbonizing, the aim here is that it will provide a platform so that uniform policies could be set up regarding the reduction emission from the transport sector in the India. Then the very important is, अगर आप एक पॉलिसी बना दोगे तो पॉलिसी के अंदर आप क्या करोगे? You will formulate a strategy, that is to formulate the strategies and develop appropriate business models so that electric vehicles, electric mobility यानी कि electric vehicles को increase करो और किस तरह से आप बाकी pollution को control कर सकते हो. So this is the main purpose of this forum. Now when I talk about NDCTIA, so it is a joint program of 7 organizations of Asia, जिसमें चाइना, इंडिया और वियतनाम की promoting जो most comprehensive companies हैं वो यहाँ पे participate कर रही हैं. It is a part of very important initiatives like International Climate Initiative, ठीक है जी, और the Federal Ministry of Environment or you can say Nature Conservation and Nuclear Safety of Germany, they are also supporting this initiative. ये मैंने आपको बता ही दिया, to bring down the peak level of greenhouse gases. When I talk about India, so from India, the project, the Indian component of the project is basically being looked after by Niti Aayog. ठीक है जी, multi stakeholder project है ये. The very important thing is, now talk about the next question is that National Mission for Clean Ganga. Again a very important thing, because a National Mission for Clean Ganga, it is a very important program. हर टाइम आई थिंक विद इन ईच एंड एवरी मंथ पीआईबी में न्यूज में होता ही है. सो दैट इज व्हाई आई हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड योर क्वेश्चन ऑन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. It was registered under the Societies Act of 1860. You have to tell me in which year it was registered under this act. So is it 2010, 2011, 12 या 13? So आंसर क्या है जी, 2011 में इसको रजिस्टर किया गया था. If I talk about National Mission for Clean Ganga, so it is being registered as a society on August 2011 under the act, that is Societies Registration Act of 1860. इसको the ministry in which it is working is Ministry of Jal Shakti. ठीक है, एम आपको पता है कि इकोलॉजिकल फ्लोज यानी कि रिवर गंगा का फ्लो बेटर रहे, उसी के लिए इसको बनाया गया था. एंड इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. Then guys, the next question is about the Bharat Series initiative. Again a very important thing that was in news. So a new registration mark for vehicles, यानी कि जैसे होता है ना PB, HR, तो इस तरह से एक नई सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम है भारत सीरीज. तो आपने मुझे बताना है कि इसके बारे में 2 पॉइंट्स मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ. द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ऑन voluntary basis to defense personnel, central government employees or state government employees. The important thing is which have their offices in how many states or UTs, मतलब कितनी कम से कम कितनी states और UTs में उनका ऑफिस होने चाहिए, 4, 5, 6 या 3. So let's see how many of you have revised this Bharat series. तो आंसर क्या है जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. अगर 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स और यूटीज में आपका ऑफिस है ऑफ डिफेंस पर्सोनल, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर किसी पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर कंपनी का, तो देन दे कुड यूज दिस भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क. ओके, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दिस इनिशिएटिव. ठीक है जी. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज इट इज वॉलंटरीली. ठीक है, इट विल बी अवेलेबल ऑन वॉलंटरी बेसिस, कंपल्सरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना, इट इज वॉलंटरीली नेचर. तो ये याद रखना
इस पॉइंट को, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है जी. नाउ हियर आई हैव गिवन यू द अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन हैव अ लुक. ठीक है जी, अबाउट द सीरीज. देन गाइज द 9th क्वेश्चन इज अबाउट अगेन an initiative of Ministry of Ayush, that is आयुष प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन कैंपेन. ठीक है जी. तो आपने मुझे बताना है इस कैंपेन के बारे में. स्टार्टिंग में हमने डिस्कस इसके बारे में किया था, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द आयुष प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन कैंपेन. सो इट इज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. ठीक है जी. टारगेट क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन देनी है एंड द गाइडलाइंस टू कॉम्बैट कोविड-19. द किट एंड द गाइडलाइंस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय आईसीएमआर. वेदर आईसीएमआर ने प्रिपेयर किया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है जी. वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव या फिर कॉम्बैट कोविड-19 के लिए ही बनाया गया था. तो here guys the answer is option number B, ICMR. It is not being developed by ICMR. Let's see who has developed this, who has prepared these guidelines. Okay, so if I talk about this guidelines, if I talk about this campaign, so guidelines are basically being prepared by Central Council for Research in Ayurvedic Medicines. ठीक है जी. आज़ादी का अमृत महोत्सव के कैंपेन के अंदर इसको लॉन्च किया गया है. ठीक है. नाउ हियर अगेन पर्पस बेसिकली ये है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है. ठीक है जी. बट द गाइडलाइंस आर बेसिकली और कोविड-19 से आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो दिस वाज द मेन फोकस ऑफ दिस इनिशिएटिव. देन गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 7th इनिशिएटिव. आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेट ने या यूटी ने 7 इनिशिएटिव लॉन्च किया है. ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली. सो आंसर हियर क्या है जी? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड proof initiative that is related to Jammu and Kashmir. Now when I talk about Ladakh, तो लद्दाख के लिए इंपॉर्टेंट हमने क्या डिस्कस याद किया था कि लद्दाख के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है. ठीक है जी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट लद्दाख. when I talk about दिल्ली, सो दिल्ली में क्या हुआ है? इंडिया का पहला स्मोक टावर जो है वो कहाँ पे सेटअप हुआ है? दिल्ली में. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. इसी तरह से आप रिलेट भी कर सकते हो फॉर योर करंट अफेयर सेक्शन, रिवीजन भी आप कर सकते हो. ठीक है जी. नाउ टॉकिंग कमिंग बैक अगेन टू दिस क्वेश्चन अबाउट 7 इनिशिएटिव. तो 7 इनिशिएटिव बेसिकली क्या है? इट इज अ रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेटिंग प्रोग्राम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन. ठीक है जी. किस चीज पे फोकस किया जा रहा है? फोकस किया जा रहा है मेंटरिंग और मार्केट लिंकेज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर बेसिकली बीइंग क्रिएटेड बाय दिस वुमेन्स. ठीक है जी. और टारगेट क्या है कि 11,000 मोर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको क्रिएट करने हैं अंडर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है जी. 10 सेक्टर्स यानी कि 10 डिफरेंट सेक्टर्स में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी विच इंक्लूड एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और एनिमल हस्बेंड्री. इस तरह के कुछ सेक्टर्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं अंडर विच द ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस 7 इनिशिएटिव. नाउ गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंडिया साइज. ठीक है जी. सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट under the research and development scheme which is being named as India Size. You have to tell me in which of the following year this India Size scheme was announced. Is it in 2019, 18, 20 या 17? ठीक है जी. So guys, the scheme was announced in the year 2019. Now coming to this India Size initiative, तो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का ये एक इनिशिएटिव है. टारगेट क्या है? हम इंडियन साइज चार्ट्स के हिसाब से अपने यानी कि इंडियन बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से इंडिया साइज चार्ट बनाना चाहते हैं. तो जनरली सी वेट वी विजिट टू द एनी काइंड ऑफ गारमेंट हाउस. ठीक है. जब एप्पल हाउस में जाते हो तो यू हैव सीन कि साइज होता है MS और नाउ फॉर बेस्ड ऑन दैट. तो ये क्या होता है? ये फॉरेन कंट्रीज के डिजाइन किए हुए साइजेस हैं. नाउ ऑन द बॉडी मेजरमेंट्स ऑफ द इंडियन पीपल वी वांट टू डेवलप अ इंडिया साइज चार्ट. ठीक है जी. सो इसी के लिए ये इंडिया साइज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इन द मंथ ऑफ February 2019. ठीक है. तो अंडर द प्रोजेक्ट कैसे इसको स्टार्ट किया गया? तो अंडर द प्रोजेक्ट क्या हुआ जी? 25,000 persons which are aging from 18 to 65 years in 6 different regions have been categorized so that a body size could be developed based on this data set. ठीक है जी. Now very important thing is at present there are only about 18 countries which have their own sizing शर्ट. सो बेस्ड ऑन दैट इंडिया चाहता है कि हम भी एक अपना इस तरह से एक अपना साइजिंग यानी कि एक शर्ट साइजिंग चार्ट बना सकें. द नेक्स्ट इज गाइज अबाउट द
Pulse initiative. So which of the following digital payment platform has launched country's first geospatial website that is being named as Pulse? ठीक है, जो कि डिजिटल पेमेंट ट्रेंड्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा देगा। तो आपने मुझे बताना है कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो, क्या वो फोन पे है, गूगल पे है, अमेजॉन पे है या फिर पेटीएम है। सो आंसर क्या है जी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोन पे इज द राइट आंसर हियर। सो रिसेंटली फोन पे जो है उन्होंने एक जियो स्पेशल वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम है पल्स। पर्पस एज आई हैव डिस्कस द क्वेश्चन क्या था जी कि एक डाटा मिल जाए आपको ऑन डिजिटल पेमेंट ट्रेंड्स। देन गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिसेंटली द 3 स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स, यानी कि फुटप्रिंट्स मिले हैं आपको 3 स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स के। आपने मुझे बताना है किस डेजर्ट से वो, यानी कि एक डेजर्ट से मिले थे, किस डेजर्ट से साइंटिस्ट को ये 3 स्पीशीज ऑफ डायनासोर यानी कि फुटप्रिंट्स जो मिले हैं। इज इट थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट या फिर कलाहरी डेजर्ट? सो आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, थार डेजर्ट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट हियर गाइस, तो बेसिकली 3 स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं, ठीक है जी, विच बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं यानी कि यूब्रोनेट्स, ठीक है जी, और ये नीचे नाम दिया हुआ है यानी कि गिगेंटस, यूब्रोनेट, ग्लैंड्रोसेंसिस और ग्रेलिटर टेनोइस। सो दीज आर द स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स। तो आपको ये स्पीशीज के नाम नहीं याद रखने। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेकिंग यू, डोंट क्रैम दिस नेम, जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया। आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है इसके कहाँ से मिले हैं, दैट इज इन थार डेजर्ट, दैट इज इन Rajasthan in India. So this is the important thing that you should remember. Then guys, the next is about that recently the CSIR National Institute of Science Communication along and Policy Research, they have organized a national conference which is basically being commemorating the Azadi का अमृत महोत्सव। तो आपने मुझे बताना है उस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, फॉस्टरिंग द साइंटिफिक टेम्पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क, Science and Technology in India, a historical introspection with a contemporary perspective, or Science and Technology in India, forging ahead with modern innovations. So here guys, the answer is option number C. If I talk about this initiative, तो CSIR ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए एक they have organized a national conference. So theme of the conference I have discussed with you. क्या बेसिकली इसके अंदर डिस्कस किया गया? तो इसके अंदर डिस्कस किया गया that how women in science and challenges which women are facing in science and technologies and what are the opportunities that they can avail, ठीक है जी। और एक सेकंड पैनल डिस्कशन हुई थी जिसका नाम किसके ऊपर हुई थी, दैट इज साइंस एंड सोसाइटी, यानी कि कुछ रिफ्लेक्शन देखेगी कि किस तरह के न्यू मॉडल जो हैं या किस तरह से क्लोजर एंगेजमेंट की जा सकती है साइंस और सोसाइटी को क्लब करने के लिए। दिस वाज बेसिकली फॉर विच दिस कॉन्फ्रेंसेस हैव टेकन प्लेस। नाउ गाइस द 15th क्वेश्चन इज अबाउट that which of the following or UT they have launched a program for large scale seaweed farming। तो सीवीड फार्मिंग के लिए किसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वेदर इट इज अंडमान एंड निकोबार, दादरा नागर हवेली, पौंडीचेरी या फिर लक्षद्वीप। लेट्स सी, तो आंसर क्या है जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। तो रिसेंटली गाइस लक्षद्वीप ने सीवीड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए दे हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम so that large scale seaweed farming can take place in the 9 islands that Lakshadweep is taking. So इसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा? द टेक्निकल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय आइकर। यस, इन द आइकर्स इंस्टीट्यूट दैट इज सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आइकर विल बी हेल्पिंग हियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट इज एन इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू आइकर, क्योंकि आइकर का ही इनिशिएटिव है तो ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। Then guys, the 16th question is about India's first Dugong Conservation Reserve. So recently आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है that they will be setting up India's first Dugong Conservation Reserve. Is it Kerala, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश? So आंसर क्या है जी? तमिलनाडु। So guys, recently तमिलनाडु ने अनाउंस किया है कि they will be setting up India's first Dugong Conservation Reserve. If I talk about Dugong, so what are they? They are basically called as सी काउस, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव, तो एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से क्या याद रखना है आपको कि इसका स्टेटस अंडर द IUCN। तो IUCN के इसके अंडर इसका स्टेटस क्या है? इट इज बीइंग लिस्टेड एज वल्नरेबल, ठीक है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वेयर दिस कंजर्वेशन रिजर्व विल बी सेट अप, इट विल बी बिल्ट इन पाक पे, ठीक है जी। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डिगोंग, ठीक है। तो देखो हमने पता किया कि कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है,
नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट डिगोंग आल्सो, क्योंकि होता क्या, एक सी काउ है जिसका स्टेटस वल्नरेबल है अंडर द IUCN कैटेगरी, and it is only herbivorous marine mammal on the earth. So very very important about this, because this kind of information could also be there in your examination. Then guys, the 17th question is, आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है that they will be introducing agriculture and agronomy in the school syllabus. ठीक है जी, in their state run schools. So is it कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा? तो देखते हैं जी किसका आंसर सही होता है। तो आंसर क्या है जी, महाराष्ट्र। नाउ गाइस सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। अभी हमने इन द मंथ ऑफ अगस्त क्या पढ़ा था कि किस स्टेट ने कहा है कि हम एक सेपरेट एग्रीकल्चर बजट बनाएंगे, तो वी नो इट वाज तमिलनाडु। तो याद रखो बजट इज तमिलनाडु, सिलेबस इज महाराष्ट्र। तो क्या हुआ जी, तमिलनाडु ने बजट प्रेजेंट किया और सिलेबस किसने बनाया था उसका, महाराष्ट्र ने। दिस कैन बी अ ट्रिक दैट यू कुड यूज हियर, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड रिमेंबर, बिकॉज कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो सकती है बच्चों को। Then guys, the 18th question is about that recently it has been announced that India will be hosting the second edition of United Nations World Geospatial Information Congress, and it will be taking place in the month of October 2022. तो दोनों ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। आपने मुझे बताना है कि कौन सी कंट्री ने बोला है कि हम भी इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। तो आई थिंक मैंने आंसर क्वेश्चन में आपको खुद ही बोल दिया है। तो आंसर इज वेरी इजी, इंडिया हैज डिसाइडेड। So India will be hosting the second edition in the October 2022. ठीक है जी। So now guys, if I talk about this thing, so basically the committee who will be hosting this thing, so United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, it is basically hosting the session. तो ये basically host करवाती है। hosting country कौन सी होगी, इंडिया होगी। the theme for that will be towards geo enabling the global village. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आफ्टर एवरी 4 year दिस इवेंट इज दिस बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ UNWGIC टेक्स प्लेस, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज कंडक्टेड बाय चाइना इन 2018, द सेकेंड वन विल बी कंडक्टेड बाय इंडिया, ठीक है जी। और ये होगी कहाँ पे, इट विल टेक प्लेस एट हैदराबाद इन तेलंगाना। Now guys, the 19th question is about the shared destiny 2021. तो आपने मुझे बताना है ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज किस कंट्री ने अनाउंस किया है। इज इट बीइंग अनाउंस्ड बाय जापान, चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया? सो हियर द आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चाइना। सो यस गाइस, रिसेंटली द चाइनीज मिलिट्री दे हैव अनाउंस्ड दैट दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी, ठीक है जी। द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज विल बी चाइना, Pakistan, Mongolia and Thailand, and it will take place at Henan province in China. Now guys, the next question is that about the exercise, that which of the following naval exercise has been conducted for all the Quad countries. If you have just gone through the newspaper, तो Quad countries अभी भी न्यूज में थी। तो Quad countries are इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो आपने मुझे बताना है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। इज इट मालाबार, सिम्बेक्स, ओमेक्स या फिर कॉनकन? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है जी, यस इट इज अ मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है जी। तो मालाबार एक्सरसाइज की बात हुई है, कहाँ पे हुई, इट हैज टेकन प्लेस एट ग्वाम, दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। देन गाइस, द 21st क्वेश्चन इज अबाउट रिसेंटली you tell me which of the following organization has developed an advanced shaft technology which will be basically used to safeguard the fighter aircrafts of Indian Air Force, ठीक है जी, so that radar threats could be curbed down. You have to tell me the name of that specific organization. Is it ISRO, NRDC, BARC या फिर DRDO? So किसने डेवलप किया है जी, it has been developed by DRDO, ठीक है। सो DRDO has recently developed this advanced shaft technology, ठीक है जी। सो here the detail has also been provided कि कौन सी उन्होंने shaft material यूज किया है, that is by the shaft cartridge 118I. so that is not that much important, but this is the additional information that we are providing to you, ठीक है जी। और ये किसने बनाया है, it is being set up by Defense Laboratory Jodhpur of DRDO along with the High Energy
मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी विच इज अ पुणे बेस्ड लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की ही दोनों लेबोरेटरीज है, दैट इज फर्स्ट इज दी डीएल डिफेंस लेबोरेटरी एट जोधपुर एंड सेकंड वन इज HEMRL दैट इज इन पुणे. Next is guys the 22nd question is about National Teachers Award. So awards are again important for your examination. आपने मुझे बताना है कौन से which among the following has won this National Teachers Award for introducing green education initiatives in his school. Is it Lalit Singh, Santosh Kumar, MB Prasad या फिर सत्यम कनौजिया? So guys the answer here is option number B, option number C. MB Prasad is the answer here. So Mr. MB Prasad, he has won this award. So he is basically running a school in the Thrissur district of Kerala and he has introduced a green education initiative. तो यहाँ पे होता क्या है basically, what is a green education initiative? The initiative includes a biodiversity park has been set up in the school premises, a small bird sanctuary, animal park or medicinal plants. So these are the important things that have been set up in the school. So that is why this green education initiative is named. ठीक है जी. तो इसको award दिया किसने? Award is being presented by Ministry of Education. Then guys the next question is about recently India has successfully tested an indigenous technology cruise missile. आपको मुझे बताना है what is the name of the engine that has been used in this specific missile. Is it प्रकाश, लेजर, शक्ति या फिर मानिक? ठीक है जी. तो आंसर क्या है जी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानिक इज द राइट आंसर हियर. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस इनिशिएटिव, सो बेसिकली क्या है जी, एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया था. उसके अंदर एक मेड इन इंडिया यानी कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड टर्बोफैन इंजन हैज बीन सेट अप देयर व्हिच हैज बीन नेम्ड एज मानिक. ठीक है जी. और इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. सो सी अगेन अ क्वेश्चन. तो हमने पहले पढ़ा एक शाफ्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है जी. इट इज एडवांस्ड shaft technology that was developed by DRDO. Now we are discussing a turbofan engine developed by DRDO that is by the name of Manik. ठीक है जी. तो ये बेसिकली क्या है? ये एक एडवांस वर्जन है ऑफ द क्रूज मिसाइल निर्भय. ठीक है. सो अबाउट निर्भय आई हैव आल्सो गिवन यू द इंफॉर्मेशन हियर. तो निर्भय बेसिकली क्या है? ये एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड है 0.7 to 0.9 मैक एंड इट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 1500 किलोमीटर. Then guys the second last question of the day related to sports. So Paralympics की मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ. अवनी लिखारा की बात कर चुकी हैं that she has become the first person जिन्होंने 2 medals जीते हैं in the same Paralympics. ठीक है जी. So there are lots of persons. मैंने आपके साथ एक शेयरिंग भी की हुई है कि which are the important persons who have won the award. So now the next question that I am asking you is who has become the first ever IAS officers to have not only उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया बट उन्होंने एक मेडल भी जीता है इन द पैरालंपिक्स. सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन. इज इट निशात कुमार, भीमराव केसरकर, जोगिंदर सिंह बेदी या फिर सुहास ललिनकेरे यथिराज? सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन. So answer here is option number D, that is Mr. Suhas is the first ever IAS officer who have participated and have won the medal in Paralympics. ठीक है जी. तो ये बेसिकली कहाँ से? एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग इन नोएडा एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ठीक है जी. वेरी इंपॉर्टेंट इज ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ही इज बेसिकली फ्रॉम कर्नाटका बट एट प्रेजेंट नोएडा में वर्क कर रहे हैं. देन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज. आपने मुझे बताना है इंडिया हैज नेम्ड द इवैक्यूएशन मिशन. ठीक है. इंडिया ने क्या नाम दिया है अपने इवैक्यूएशन मिशन? सो दैट द सिटीजन दैट So India has named the evacuation mission of its citizens from Afghanistan as which among the following. ठीक है जी. तो I think there is a slip of tongue from my end. I am really sorry for that. तो आपको मुझे बताना है कि इस evacuation mission का नाम क्या है. Is it ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन फ्रीडम या फिर ऑपरेशन शक्ति? ठीक है जी. तो लेट्स सी. तो गाइज आंसर इसका क्या है जी? आंसर इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन देवी शक्ति इज द राइट आंसर हियर. ठीक है. सो ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया ऑफ द इवैक्यूएशन मिशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम Afghanistan. So guys that was it for today's lecture. If you have any kind of query you could drop us an email also. ठीक है जी. That is at our email ID hello@edutab.co.in. You could even place us a call. Our mobile number is 8146207241. ठीक है जी. अगर आपको कोई सजेशन है वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं. ठीक है गाइस. Wishing you all the best for your examination. Hope you are preparing well also. So again best of luck for your examination and bye bye guys.